बस सही है, ठीक है. Okay, now quiet please. Now see, in the urinary system, I have already told you that in the urinary system, we have been actually discussing here the anatomy of the urinary system organs first. And I told you that urinary system organs, they consist of the two kidneys, a pair of kidneys, their location and their structure you saw in the previous classes. And each kidney is giving rise to a ureter that actually is connected here with the calyceal system. Pelvic calyceal system means with the pelvis, renal pelvis, then the minor calyces and the major calyces, which are connected to the collecting ducts, which in fact are connected here to the nephrons via collecting tubules. And then you saw that the two ureters entered into the musculature of the urinary bladder, where the urine is stored temporarily. And after the urine is stored to a certain quantity, then the desire of voiding the urine or bringing out the urine, that is called the process that is called the micturition. Micturition is the process. It is a reflex in which when there is a stretch on the walls of the urinary bladder, there is a desire. Desire of, this is a conscious desire. It's not just desire, but there are certain changes within the structures of urinary bladder, urethra and etc., which all will help to actually bring the urine out. This whole process is called the micturition. This whole reflex is called the micturition. ये हमेशा नहीं होगा, ये उस वक्त होगा जब कोई स्टिमुलस आएगा, और स्टिमुलस वो होगा कि खास क्वांटिटी तक यूरिन जब एक्यूमुलेट होगी यूरिनरी ब्लैडर में, then you will have all the processes, all the different parts of your urinary system, they will adopt itself. कैसे यूरिनरी ब्लैडर का मसल करेगा कंट्रैक्ट, उसका जो इंटरनल ओरिफिस है, उसका जो स्फिंक्टर है वो होगा रिलैक्स, फिर वॉलंटरीली आप अपने वॉलंटरी स्फिंक्टर को कर देंगे खुद रिलैक्स, और इससे जो होगा वो यूरिन बाहर पास ऑन हो जाएगा. तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. इसको भी थोड़ा सा देखेंगे. तो दिस ऑल इज देयर, एंड देन आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर एवरीथिंग एक्चुअली विल गोइंग आउट थ्रू द यूरेथ्रा. And you know that the urethra in case of female is a very short and small urethra that opens at the perineum or the undersurface of the pelvis, you can say. But in case of male, the urethra is very long. You know that it is various parts until the longest part of urethra passes through the penis. That is the genital organ, but it's not genital only, because the urethra will now be performing two functions here. Most of the time it is urinary function, but at times of the sexual intercourse and the sexual and at the time of the ejaculation even, you see that this will be performing the function of the reproduction. तो इसका मकसद है कि यूरेथ्रा मेल में दो फंक्शंस करेगा. पूरा यूरेथ्रा नहीं, यूरेथ्रा के मिडिल में ज्वाइन कर देगी जेनिटल डक्ट्स. वो हम देख लेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे. तो so whole this system that you are actually seeing here, but the major organ you know that it is the kidney. आगे से जितने ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ क्या करना होता है उनको, वो यूरिन जो फॉर्म हो चुका है उसको कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में वहाँ स्टोर करके यूरेथ्रा से पास ऑन करना है. वहाँ तो यूरिन नहीं बनती, वहाँ तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट होना है. असल जो चीज़ है जहाँ यूरिन बनने वाला है वो किडनीज हैं. तो आपने देखा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में ऑलमोस्ट जो फिजियोलॉजी की जाएगी ना, तो ऑलमोस्ट 90% फिजियोलॉजी तो सिर्फ किडनीज पर होगी, क्योंकि असल चीज़ तो ज़ाहिर है मेन गेम प्लेयर तो वो ही है ना, वो है किडनीज. और असल काम है उसका, असल काम, हालांकि उसके बहुत सारे काम हैं, सिर्फ उसका काम यूरिन बनाना नहीं है. यूरिन के ज़रिए आप यहाँ पे देखेंगे कि और भी बहुत काम है इसके, जो लगेगा ही नहीं तो उसका वास्ता को यूरिनरी सिस्टम, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका वास्ता यूरिनरी से ज़्यादा और फंक्शंस है इसके. लेकिन बहरहाल यूरिनरी फंक्शन भी डेफिनेटली, क्योंकि यूरिनरी फंक्शन एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है वो तो ज़ाहिर किडनी से ज़्यादा तो बेहतर तरीके से और कोई चीज़ें नहीं कर सकती. हालांकि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो रिस्पायरेशन में आपने देखा था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज बेसिकली एन एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, तो इसका मकसद है कि हम एसिड से निजात हासिल करते हैं थ्रू ब्रीदिंग। जब भी आपका एसिड अंदर एक्यूमुलेट होता है तो रिस्पायरेशन का रेट बढ़ जाता है। आपने देखा रिस्पायरेशन का रेट आपका वो नहीं रहता 15-16, वो 30-40 तक चला जाता है, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड से निजात हासिल कर सकें। यकीनन ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे यूरिन से भी पास होती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में पास नहीं होती, वहाँ पर फिर हाइड्रोजन आयंस की शक्ल में पास होती है। इससे हम निजात हासिल करते हैं अपनी एसिड से। तो ये भी एक तरीका है। और एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास स्वेट भी है, पसीना, इससे भी हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को इन्हांस कर सकते हैं। फीसिस भी हैं, जहाँ से स्टूल पास करते हैं वहाँ से भी हम वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। तरीके तो हैं हमारे पास, लेकिन जो बड़ा एफिशिएंट तरीका है जिससे हम और बहुत सारे काम कर रहे हैं वो है किडनीज। एंड किडनी में जो सबसे मेन जो है वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी की फिजियोलॉजी जब हम करते हैं ना यहाँ, और किडनी की फिजियोलॉजी जब आप करोगे तो यू सी हियर, you see the urine formation in the kidneys, and we have told you already that when you are actually discussing the urine formation, so urine formation in the kidneys, this is the main function, and the one functional and anatomic or histologic unit of urine formation is nephron. हम एक नेफ्रॉन पढ़ लेंगे तो सारे नेफ्रॉन एक जैसे हैं, तो सबको एक जगह पर करके उसका एक रिप्रेजेंटेटिव एक सैंपल में एक नेफ्रॉन लेके अगर उसकी स्टडी कर लेंगे तो पूरी किडनी की स्टडी होगी। तो दिस इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। रीनल फंक्शन का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। एंड दैट नेफ्रॉन, यू सी दैट इफ नेफ्रॉन को अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया था ना, जब हम किडनी का सेक्शन काटते हैं ना, तो किडनी के दो हाफ करते हैं, तो ये हिस्सा होता है इसका कार्टेक्स, और ये है इसका कैप्सूल, और ये है इसका मेडुला। एंड आफ्टर द मेडुला फिनिशेस देन द आउटर पोर्शन कम्स जिसका द रीनल साइनस, जहां पर ये माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स वगैरह वगैरह होते हैं। रीनल पेल्विस भी वहीं से शुरू होता है, ये रीनल साइनस है। असल जो चीज है वो ये है मेडुला एंड कार्टेक्स। और इस मेडुला एंड कार्टेक्स में हमें देखना है क्या, एक नेफ्रॉन हम देखेंगे तो यूरिनरी फॉर्मेशन का अंदाजा हमें हो जाएगा। अब उसमें यूरिनरी फॉर्मेशन में आप यहाँ पे, मैं पहले भी दिखा चुका आपको कि जब आप बात करते हैं ना नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन यू नो दैट इट इज एक्चुअली हैज वन क्लोज्ड एंड एंड देन वन इज ओपन एंड। अब यहाँ से देख रहे हो ये इसका, ये एक क्लोज्ड एंड है इसका, जहाँ पर हमने इनिशियली देखा क्या, हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर क्लोज्ड एंड है तो क्लोज्ड एंड बेसिकली ऐसा है, क्लोज्ड एंड इज लाइक कप लाइक है, ये ऐसे। ये नेफ्रॉन की बिगिनिंग है। तो जो क्लोज्ड एंड है वो ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। तो बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन इज हियर, this one nephron and this one nephron, and that Bowman's capsule is present where, always in cortex। वो किस में होता है, हमेशा कार्टेक्स में होगा। बोमेन्स कैप्सूल कभी भी मेडुला में नहीं होगा, हमेशा कार्टेक्स में होगा। बहुत सारे तो इधर होंगे, इधर इधर इधर, कुछ होंगे यहाँ पर भी, किसके करीब, मेडुला के करीब। उनको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मीन्स जस्ट नेक्स्ट टू, क्लोज टू। कौन से ज्यादा होंगे, कार्टिकल वाले कि जक्स्टा मेडुलर, कौन ज्यादा होंगे, जाहिर है कार्टिकल। ये तो मुश्किल से 5% भी नहीं होंगे, वो तो करीब करीब लाइन पे करीब है यहाँ पर। तो दिस इज ए नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन दिखा रहा है। वो हमारे पास 1 मिलियन से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा एक किडनी के अंदर, हम सिर्फ एक देख रहे हैं। एंड दैट नेफ्रॉन इज एक्चुअली हियर एंड इट स्टार्ट्स विथ Bowman's capsule, and if the Bowman's capsule is there, then after the Bowman's capsule start your next area, that is called the tubular system। Bowman's capsule भी एक ट्यूब्यूल ही है, लेकिन ये ट्यूबुलर नहीं है, कप लाइक है। तो इस पूरे को हम कहते हैं ट्यूबुलर एलिमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो दिस इज एक्चुअली हियर, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्या, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये ट्यूब्यूल। क्योंकि जगह है कम इसलिए ये कन्व्यूलेटेड होगा, लाइक दिस हियर।
दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये आपका था क्या, बोमेन्स कैप्सूल। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो यहां बना है, उसके बाद ये सीधा नीचे आएगा। नीचे किधर जाएगा, ये जाहिर है कॉर्टेक्स में ट्रेवल करके ये मेडुला में चला जाएगा। अगर आपका ये बोमेन्स कैप्सूल इज अवे फ्रॉम द मेडुला, देन दिस टिब्यूल विल एक्चुअली बी डिपिंग इनटू द मेडुला। ये कॉर्टेक्स में अगर दूर रहा, अगर यानी मेडुला से अगर दूर है, तो ये जो टिब्यूल है ये ज्यादातर ट्रेवल करेगा कॉर्टेक्स में ही, और उसके बाद इंटर हो जाएगा मेडुला में और जल्दी वापस आ जाएगा। इसका मकसद है कि वो डिप ज्यादा नहीं करेगा मेडुला के अंदर। लेकिन अगर बोमेन्स कैप्सूल है ही करीब इधर, तो उसका टिब्यूल ज्यादा डिप करेगा, वो ज्यादा मेडुला में रहेगा। तो juxtamedullary nephrons have got their tubular system or have got their loop of Henle more dipping into the medulla. लेकिन proximal convoluted tubule ये कभी नहीं आएगा मेडुला में, ये हमेशा कॉर्टेक्स में ही रहेगा। भले चाहे juxtamedullary क्यों ना हो, चाहे मेडुला के करीब ही क्यों ना हो आपका ये बोमेन्स कैप्सूल, उसके बावजूद उसका proximal convoluted tubule वो हमेशा कॉर्टेक्स में होगा। लेकिन उसका लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा होगा, और कहां तक डिप करेगा, वो मेडुला में काफी अंदर डिप करेगा। एंड इफ यू आर एक्चुअली वाचिंग हियर, देन this loop of Henle is there, and this loop of Henle has got the descending limb, then is the loop, and then is the ascending limb, and then ascending limb। और ascending limb जैसे वापस आ गई है, तो ये फिर बना देगी क्या, ये बना देगी हमारा distal convoluted tubule, and this distal convoluted tubule will finally end up into collecting duct। ये collecting duct है, और ये मैंने आपको बताया था ना कि ये collecting duct एक आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, ये सैकड़ों मिलके एक पिरामिड बनाएंगी, क्योंकि ये सब मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पर पिरामिड बन जाएगा। और पिरामिड जो होगा वो शुरू में तो आपको पता है इसका बेस वाइडर होता है और एपेक्स नैरोअर होती है, तो सारे कलेक्टिंग डक्ट एक जगह पे आके जमा हो जाती है। जैसे झाड़ू होता है ना, झाड़ू की तीलियां कैसे होती हैं, थोड़ी फैली हुई, लेकिन जिस जगह से पकड़ते हैं वो टाइट होती है, और उस जगह पर ये पॉइंटेड होगा। ऐसी पॉइंटेड चीज को हम रीनल पेपिला कहते हैं, वेयर ऑल द कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर, गेदर्ड। और ये कहाँ ओपन हो जाएंगी, माइनर कैलक्स में, और माइनर कैलक्स से 4-5 मिलके एक मेजर, 2-3 मेजर मिलके रीनल पेल्विस, और बाहर आ गया यूरेटर। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक कलेक्टिंग डक्ट में कितने नेफ्रॉन्स ओपन हो सकते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग हियर। और ये जो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये तो यहाँ है, ये तो हमने कलेक्शन करके बाहर फेंकना है, लेकिन मसला ये है कि क्या फेंकना है, कहाँ से, ब्लड से। तो इसका मकसद है कि हमें चाहिए क्या, एक वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड भी तो चाहिए इसके लिए। और फिर ब्लड में मैंने आपको बताया था कि ब्लड सिस्टम, आर यू सी द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनीज, वो किडनी ले रहा है कितना, जो 5 लीटर है आपका टोटल कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट पंप करता है 1 मिनट में, उसका ऑलमोस्ट 21%, चलो 20% इज एक्चुअली पासिंग एंड बीइंग टेकन बाय द 2 किडनीज। 1 लीटर 1 मिनट में, 1 लीटर 5 लीटर से 5 लीटर जो पूरे बॉडी को सप्लाई होना है, उसमें से 1 लीटर सिर्फ ये 2 छोटी सी किडनीज ले लेती है। तो किडनी को इतनी ब्लड सप्लाई होती है, और किडनी को ब्लड सप्लाई इसलिए होती है क्योंकि अंदर हम क्या करना चाहते हैं, प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं, प्रेशर चाहिए हमें, क्योंकि प्रेशर से हमें फिल्टर करना है। किडनी को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की इतनी, कि आप समझ रहे हैं कि किडनी 1 लीटर ले रही है तो क्या उसको ऑक्सीजन की इतनी जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ब्लड की किडनी की तरफ जाए, ताकि जल्द से जल्द आपका ब्लड फिल्टर हो जाए। वरना किडनी कहे भाई मुझे इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे आप 100 ml दे दें, तो 100 ml अगर 100 सिर्फ 100 ml देते रहेंगे आप, तो 5 लीटर तो वहां से पास होने में तो फिर 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक इतनी गंदगियां जमा हो जाएंगी आपके ब्लड में। तो किडनी क्यों ले रही है ज्यादा ब्लड, क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं, वो ज्यादा क्वांटिटी इसलिए ले रही है ताकि आपका ब्लड जल्द से जल्द फिल्टर हो जाए। समझ लो कि 1 लीटर ले रही है 1 मिनट में, तो 5 मिनट के अंदर पूरा ब्लड उससे भी पास हो जाएगा, दोनों किडनी से, वो साफ हो जाएगा। तो जहां पर हमने ये देखा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए जाहिर है ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई में आपको बताया हमने कि ब्लड सप्लाई में सबसे पहले क्या आया था, रीनल आर्टरी। फिर रीनल आर्टरी से हमने निकाली एक पोस्टीरियर सेगमेंटल, एक एंटीरियर, 2 आर्टरियां निकाली।
फिर उन आर्टरियों से फिर जो इंटीरियर थी उसको हमने 2 में स्प्लिट किया, 2 को फिर 4 में किया, तो हमें मिल गई यहाँ पर सेगमेंटल 5 आर्टरीज। फिर सेगमेंटल 5 आर्टरियों को हमने स्प्लिट किया तो हमें मिला इंटरलोबार आर्टरीज। हर एक इंटरलोबार को हमने ऊपर ऐसे आर्क्यूएट बनाया, और आर्क्यूएट से फिर हमने निकाला इंटरलोब्यूलर, और इधर से निकाला हमने आर्टीरियोल। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये आर्टीरियोल। ये आर्टीरियोल किस तरफ बढ़ रहा है? ग्लोमेरुलस की तरफ। और ये आर्टीरियोल बिल आखिर यहां स्प्लिट हो जाएगा तो बन जाएगा ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस जो है, जैसे ग्लोमेरुलस रीयूनाइट होगा, ये एकदम से फिर एक और आर्टीरियोल बनेगा। ये आर्टीरियोल्स में आप यहां पे देखेंगे 2 आर्टीरियोल्स बनेंगे, एक जो ब्लड लेके जा रहा है, एक जो ब्लड अवे है, एक टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस है। इसको हम यहां पे कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इन दोनों पे नजर रखना, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि ये जो इस वक्त ब्लड इंटर हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट हाफ प्लाज्मा है, हाफ सेल्स हैं, कितना 1 मिनट में, कितना 1 मिनट में आपका 1 लीटर, समझ ले 1 लीटर रफली। और उस 1 लीटर में हाफ समझ लो सेल्स हैं, हाफ प्लाज्मा है। तो इधर से फिल्टर सिर्फ प्लाज्मा होगा, सेल्स नहीं होंगे, सेल एक भी नहीं आएगा। तो इसका मकसद ये है कि तुम्हारा टारगेट एवरी मिनट, तुम्हारा टारगेट किस पर है? प्लाज्मा पर। आया टोटल ब्लड कितना था? 1 लीटर। तो तुम्हें इस वक्त फिल्टर कितना करना है? 1 के आधा। कि तुम्हारा देखो ना, आपके पास ब्लड आया है टोटल कितना? रफली 1 लीटर। 1 मिनट में कितना आया है? 1 लीटर आया है। उस 1 लीटर में, 1 लीटर को, 1 लीटर में तुम्हें फिल्टर क्या करना है? क्योंकि आधे सेल्स हैं, आधा प्लाज्मा है, तो तुम्हें क्या फिल्टर करना है? प्लाज्मा फिल्टर करना है। जब प्लाज्मा फिल्टर करना है तो प्लाज्मा कितना आया है? आधा लीटर आया है, 500 ml आया है। तो यहां से 500 ml प्लाज्मा पर तुम्हारी नजर है, इसी से तुम्हें यूरिन बनानी है। अब प्रेशर बहुत जबरदस्त है इधर। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि एक मेजर आर्टरी आई थी, वो 4 में डिवाइडेड, 5 में डिवाइड हुई, 5 10 में हुई, 10 20 में, ऐसे होते होते जहां आर्टीरियल पहुंचा। तो आप सोच सकते हो आर्टीरियल में कितना जबरदस्त प्रेशर होगा। अब देखिए फर्क क्या है। एक जो एफरेंट आर्टीरियल है, इसका डायामीटर इफरेंट आर्टीरियल के डायामीटर के मुकाबले में ज्यादा है। यह है फर्क। अब देखना इस फर्क का क्या फायदा हुआ। क्या हुआ? ब्लड तो आ रहा है ज्यादा, जा रहा है कम। तो इसका प्रेशर जो होगा, क्या ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ला रहे हो बहुत ज्यादा, जा रहा है बहुत कम। तो इसका मकसद है कि वेयर विल बी द प्रेशर? ग्लोमेरुलस में प्रेशर है। और ग्लोमेरुलस किस चीज का बना हुआ है? कैपिलरीज का। ये किस चीज का है? कैपिलरीज का। एंड दीज कैपिलरीज आर वेरी थिन। ये जो कैपिलरीज आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसे होती है, ये कैपिलरीज हैं। और इसके अंदर क्या है? एपिथेलियम। और एपिथेलियम के बीचों बीच छोटे छोटे सुराख होते हैं, फेनेस्ट्रेशंस जिसको हम कहते हैं। ये छलनी है एक तरह से। वो छलनी के जो सुराख हैं थोड़े से बड़े हैं, और अगर ये बड़े हैं तो इसकी जो वाल है वो क्या है? ये थिन है, उसमें सुराख हैं। और जो सुराख हैं, तो यहां से जो प्लाज्मा है, क्या ये फिल्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो क्यों हो जाएगा? एक तो सुराख ज्यादा बड़े हैं, फेनेस्ट्रेशन से, दूसरी कैपिलरियों के मुकाबले में ज्यादा वाइडर हैं, नंबर 1। और दूसरा, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमें देखना होगा कितना प्रेशर है। इसको हम कहते हैं यहां पर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर अंदर है, इसके अंदर जो प्रेशर माउंट हुआ है, क्यों 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 इतना प्रेशर हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर इफरेंट के मुकाबले में ज्यादा है। ये ज्यादा ब्लड है, इधर निकल कम रहा है, सारा प्रेशर इधर है, तो वो फिल्ट्रेशन हो रही है। और फिल्ट्रेशन हो रही है तो हम इस फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन, या सीधा सीधा बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप यही है, जिसको समझने के लिए पहले तो नेफ्रॉन को समझना होगा, फिर तुम इस बोमेंस कैप्सूल को समझोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कैपिलरीज हैं आपकी, इससे फिल्टर तो हो गया, लेकिन ये फिल्टर होके आएगा किधर? बोमेंस कैप्सूल में। तो इसका मकसद ये कि ये बोमेंस कैप्सूल की जो ये वाल है, ये वाल, इसका मकसद है कि ये भी थिन होनी चाहिए, इसमें भी फेनेस्ट्रेशंस होनी चाहिए। तो नेचर ने इधर भी बहुत ही थिन एपिथेलियम रखा है,
जिसको हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, और एक कैपिलरियों में भी क्या रखा है, सिंपल स्क्वामस रखा है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इसका सुराख और इसका सुराख। क्या बीच में कोई होगा? सिर्फ क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि आपको पता है एपिथेलियम के ऊपर क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर होता है कैपिलरी का एंडोथेलियम और इसके दूसरे तरफ होता है बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम। बीच में सिर्फ क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इधर से बड़े आराम से क्या आ जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, कौन, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा अगर फिल्टर हो गया इधर, जब प्लाज्मा फिल्टर हो गया तो हम इस प्लाज्मा के फिल्टर के बाद इस वक्त ये जो प्लाज्मा यहां पड़ा हुआ है, किधर, बोमेंस कैप्सूल के बीच में, जिसके जो दो वाल्स हैं, दो वाल्स इसकी दो लेयर्स, इसके बीच में ये स्पेस है, बोमेंस स्पेस, रीनल स्पेस भी कहते हैं। ये क्या है, बोमेंस स्पेस है। इसमें क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, क्या थोड़ा कि बहुत ज्यादा? क्यों बहुत ज्यादा? प्रेशर बहुत ज्यादा है। कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये किधर से आया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया है जो वाल पे पड़ रहा है, किसके, कैपिलरीज के, और कैपिलरीज के वाल पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से प्लाज्मा का बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा तो नहीं चले, प्लाज्मा का काफी हिस्सा फिल्टर होकर बाहर निकल गया है पानी की शक्ल में। क्या हम कह सकते हैं कि यूरिन बनना शुरू हो गई है? बनना शुरू हो गई है, लेकिन हम इसको यूरिन अभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ी ना कोई यूरिन है, ये कोई फ्लूइड बाहर निकल आएगा। हम इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे हम इसको। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इस वक्त फ्लूइड यहां पड़ा हुआ है, इसको हम ग्लोमेरुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं, हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन भी कहते हैं इसको। तो पहला प्रोसेस यूनिफॉर्मेशन का क्या है, फिल्ट्रेशन। कौन सी फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कितने ब्लड पर हमारा टारगेट था पर मिनट, 1 लीटर पर, लेकिन निकला कितना, प्लाज्मा कितना, ½ लीटर। ½ लीटर पर टारगेट है, ये नहीं कि ½ लीटर सारा निकल आएगा, निकलेगा कितना, जितना आया है उसका 1/4 उधर फिल्टर होगा। कितना आया था, ब्लड कितना आया है, निकला कौन है, प्लाज्मा ½ लीटर, और ½ लीटर माने कितना, 500 ml। 500 ml का 125 ml जो है ये इधर से फिल्टर हो जाएगा, 125 पर मिनट इधर से फिल्टर हो जाएगा। तो दोनों किडनीज में मिला के टोटल पर मिनट कितनी फिल्ट्रेशन होती है, 250। दोनों में मिला के 125, ये नहीं कि ये भी मैं आपको बोल रहा हूं 1 लीटर आता है तो 1 लीटर एक किडनी के पास नहीं आता, दोनों के पास आता है। प्लाज्मा ½ लीटर एक किडनी के पास नहीं आता, दोनों के पास आता है। 125 एक किडनी से नहीं निकलता, दोनों से, किडनी से नहीं, दोनों ग्लोमेरुलर फिल्टर। तो हम कहते हैं कि ये है हमारा रेट है पर मिनट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, द क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय नेफ्रॉन्स ऑफ द बोथ किडनीज इन 1 मिनट। इसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये आपको पता है ना कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये कितना है, 125 मिलीलीटर है पर मिनट। ये उम्र पूछा जाएगा आपसे। यूरिन फॉर्मेशन यहां से शुरू तो हो चुकी है, लेकिन ये नहीं है कि ये 125 जो है ये यूरिन बन के बाहर आएगा, ऐसा नहीं होगा। आएगा कितना, मैंने बताया सिर्फ 1 मिलीलीटर। इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद ये होगा कि 124 मिलीलीटर जो है वो ट्यूब्यूल में जरूर आएगा, ये माइनर कैलेस तक पहुंचेगा भी, लेकिन 125 नहीं पहुंचेगा, सिर्फ 1 मिलीलीटर पहुंचेगा। इसका मकसद है कि 124 मिलीलीटर रास्ते में से गुजरते गुजरते यहां से वापस ब्लड में चला जाएगा। इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं कहते, इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि ये वो पानी है जो पहले आप पी चुके हैं, वो आपके इंटेस्टाइन से पहले एब्जॉर्ब हो चुका है, ये दोबारा रीएब्जॉर्ब हो, इसको दोबारा एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए हम इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको हम एब्जॉर्प्शन नहीं कहते, दैट इज कॉल्ड द रीएब्जॉर्प्शन। अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड द रीएब्जॉर्प्शन। तो ये रीएब्जॉर्प्शन यहां से होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां से जो आपने इस वक्त दिखाया कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, GFR है, ये रेट है, बेटा बात नहीं करो, ये GFR है, कितना वो आपने रेट देख लिया।
सवाल ये पैदा होता है कि इतना प्रेशर आया कहाँ से? जाहिर है प्रेशर इसलिए आया कि बड़ी आर्टरी छोटी छोटी ये होता हुआ, उसके बाद ये देखा आपने एफरेंट आर्टीरियल लार्जर है, इफरेंट डायमीटर कम है, इससे भी प्रेशर मेंटेन हुआ। और फिल्ट्रेशन इतनी क्यों हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि इसके वाल में सुराख जो है वो ज़्यादा बड़े हैं और ये फिल्टर होके यहाँ से आ गया। तो तरीके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना प्रेशर यहाँ तक आ गया है, कितना प्रेशर मेंटेन हुआ है, कितना mm ऑफ मर्करी। ये होता है तकरीबन, जो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये मिला के इस प्रेशर को जनरली आप यहाँ पे देखें, अब ये ब्लड सप्लाई है जो हमने आपको अभी दिखाई, ये आर्टरी, उसके बाद ये सेगमेंटल और ये आर्क्यूएट, ये इंटरलोबार, लोब्यूलर और आखिर में आर्टीरियोल का बनना। ये आर्टीरियोल यहाँ तक बन चुके, ये देखें आप, यहाँ पे आर्टीरियोल यहाँ तक बन चुके, ये देख चुके आप यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप यहाँ, ये आर्टरी है 1, देन द 2, देन सेगमेंटल, उसके बाद ये देख रहे हैं आप इंटरलोबार, और ये देख रहे हैं आर्क्यूएट, और फिर इंटरलोब्यूलर, और एक कौन, ये क्या निकल रहा है? ये आर्टीरियोल। और एक एक आर्टीरियोल बंच बन के क्या बन रहा है? ग्लोमेरुलस। और एक एक ग्लोमेरुलस किसके अंदर जा रहा है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको पता है कि प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। वो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? वाल स्पर्म्स को कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये देखें, ये ग्लोमेरुलस है और ये आपकी आर्टरियाँ आ रही हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये सारा सिलसिला बन रहा है। ये ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्टीरियोल एंड देन इफरेंट आर्टीरियोल। और इफरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि ये आर्टीरियोल है, इस पर नज़र रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टीरियोल है तो ये एक दफ़ा फिर स्प्लिट होगा। पहले एफरेंट आर्टीरियोल स्प्लिट हुआ था तो ग्लोमेरुलस बना था, और अब की बार इफरेंट आर्टीरियोल बाहर निकलने के बाद ये भी क्या होगा? ये भी स्प्लिट होके फिर कैपिलरीज बन जाएगा। अब ये जो कैपिलरीज बनेगा यहाँ पर, तो किधर? मेडुला में के कार्टेक्स में? कार्टेक्स में। और इधर कार्टेक्स में ग्लोमेरुलस में से बोमेंस कैप्सूल के अलावा क्या बैठा हुआ है इधर? कौन से टिब्यूल्स हैं? रीनल टिब्यूल्स। कौन से वाले? प्रॉक्सिमल वगैरह वगैरह। तो ये यहां से जब स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होके कैपिलरीज बना। बेटा बात क्यों कर रहे हैं? क्या मसला क्या है? ये आप दोनों जो है ना, ये दोनों, आप भी और आप भी, दोनों आगे आ जाओ। आप आगे आ जाएं, शाबाश। कम फास्ट। एक यहाँ बैठ जाए और एक आगे बैठ जाए। देखो, मुझे बच्चों को ह्यूमिलेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास। ये वैसे भी वीडियो पे मौजूद होगा, उस वक्त शायद मूड हो आपका क्लास अटेंड करने का, उस वक्त कर लेना। दूसरों को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है? अब जा सकते हैं, मुझे बिलीव करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। तो मेरी तो कोशिश होती है कि सिर्फ बैठे ही वो जो यहाँ समझना चाहते हैं, फ़ायदा उनका है, बाकियों का कोई फ़ायदा नहीं। अटेंडेंस आपको दे देते हैं। अगर सिर्फ ही बैठना है तो यहाँ बात करनी है, तो बात करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है। अंडरस्टैंड? सो दिस विल बी एक्चुअली द एफरेंट एंड इफरेंट। तो ये क्या है? ये जो आपका इफरेंट आर्टीरियोल से फिर स्प्लिट होंगे, अब के बाद स्प्लिट होंगे, जो कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगे, तो वो ऐसे राउंडेड टफ लाइक नहीं होगा, स्प्रेड हो जाएगा, प्लेक्सस बन जाएगा, और ये ट्यूबुलर नेटवर्क बन जाएगा। और ये ट्यूबुलर नेटवर्क किसके बीचों बीच होगा? टिब्यूल्स के बीचों। कौन से टिब्यूल्स? कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स वगैरह। लेकिन ऐसे नहीं कि ये कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे पास होगा, तो ये अगर यहीं घूमता रहा तो ग्लोमेरुलस भी कार्टेक्स में, अब जो दूसरा जो कैपिलरी नेटवर्क बना रहा हूं वो भी कार्टेक्स में, तो फिर मेडुला में कौन जाएगा फिर? यही ट्यूबुलर नेटवर्क जो है ना यहाँ पर, ये ट्यूबुलर नेटवर्क की सीधी सीधी आर्टरियां डिप करेंगी किसमें? मेडुला में। किसके अराउंड? किसके अराउंड? नीचे कौन गया था? लूप ऑफ हेनली। क्या सिर्फ लूप ऑफ हेनली थी कि कलेक्टिंग डक्ट्स भी थी? तो उनके अराउंड भी एक ह्यूज नेटवर्क यहां नीचे जाएगा। ऐसे नेटवर्क को, ऐसी आर्टरियां जो आपको नीचे जाती हुई नजर आ रही हैं, कभी कभी उनको स्ट्रेट वेसल्स भी कहते हैं, स्ट्रेट वेजा रेक्टा।
तो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल, तो इसका मकसद ये है कि ये जो यहाँ पर कार्टेक्स में इफरेंट आर्टीरियोल ने अभी अभी नेटवर्क दिया है, वो क्या कहलाएगा? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। तो कैपिलरी नेटवर्क कितने होते हैं? दो। एक ग्लोमेरुलस की शक्ल में, जो किसके टूटने की वजह से बनता है? एफरेंट, इफरेंट नहीं, एफरेंट। और दूसरा किसकी वजह से? इफरेंट की वजह से। और जो इफरेंट की वजह से बनेगा, तो एक होगा वो जो कार्टेक्स में रहेगा, और बाकी जो नीचे जाएगा किसमें? मेडुला में। क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो यूरिन जा रहा है ना, वहां पर भी तो फ्लूइड जा रहा है, उस फ्लूइड को पकड़ के वापस लाने के लिए। वो चल के दिखाता हूं। तो ये क्या गया है? इसको वेसा रेक्टा कहते हैं। ये पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क के दो हिस्से हैं, एक जो कार्टेक्स में रहा और एक जो मेडुला में चला गया। अब वापस आप आ जाएं, अब आप फारिग हैं, अब आप वेन्स बनाना शुरू कर दें। तो वापस लाके क्या बनाएंगे? ये वेना रेक्टा, फिर उसको यहाँ आएंगे तो ये आर्क्यूएट वेन, फिर आएंगे तो इंटरलोबार वेन, फिर आएंगे तो सेगमेंटल वेन, होता होते रीनल वेन। आपका ब्लड जो गया, अब ब्लड वापस, क्या ऐसे ही वापस के अंदर फिल्टर होके फिर वापस? तो इसका मकसद ये है कि ये आपका वेस्कुलर सिस्टम है। ये इसका मकसद है कि नेफ्रॉन को समझने के लिए दो चीजें, एक नेफ्रॉन का टिब्यूलर स्ट्रक्चर सिस्टम समझें, और दूसरा वेस्कुलर सिस्टम समझें। क्योंकि टिब्यूलर सिस्टम तो सिर्फ कलेक्ट करने वाला सिस्टम है ना, तो आखिर में फिल्टर होगा कौन? पहले वो तो डाले ना आप, उसके लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड के लिए आपका एक सिस्टम चाहिए। और यहां से हमने यहाँ, तो इसका मकसद है कि इधर से क्या आया है? इधर से आपका फिल्ट्रेशन हुई है। तो ग्लोमेरुलस से सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगी फिल्ट्रेशन। और मैंने बताया बहुत ही जबरदस्त फिल्ट्रेशन होगी, इतना कुछ कि आधा लीटर प्लाज्मा जो आया है उसका चौथाई जो है यहां से फिल्टर हो जाएगा। चौथाई कितना? 125। तो 125 फिल्टर हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में एक चीज क्या है? फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन यहां से मैंने बताया कि ये आया आपका एफरेंट आर्टीरियोल और ये इफरेंट आर्टीरियोल, इन दोनों को एक जैसा दिखाया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ना, तो इसमें प्रेशर जबरदस्त डेवलप होगा। एक तो वाल बहुत ही थिन, ऊपर से फिल्ट्रेशन, उसके अंदर फेनिस्ट्रेशन सुराख, और फिर इसकी भी वाल बहुत थिन, फिर देर ही नहीं लगेगी, यहां से जम करके चला जाएगा कैप्सूल में। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रीनल कार्पसल। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीनल कार्पसल। सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि अगर ना यहां पर फिल्ट्रेशन कम हुई, इसके अंदर सुराख बंद हो गए, तो ब्लड आएगा तो जरूर, लेकिन फिल्टर ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा फिल्टर नहीं होगा तो गंदगियां ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगी तो पीछे जमा होंगी। हम बोलेंगे भाई इसको रीनल फेलियर हो गया। तो रीनल फेलियर की एक वजह क्या होती है? एक वजह होती है कैपिलरी के अंदर कुछ मसले हो जाएं, अगर तो ग्लोमेरुलस के अंदर कोई मसले हो जाएं तो हम इसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज वन ऑफ द काजेज ऑफ रीनल फेलियर। ये रीनल फेलियर का क्या मतलब हुआ? रीनल फेलियर का मकसद किडनी फेल हो रही है। कैसे पता चलेगा? पीछे देखेंगे हम अपना जीएफआर देखेंगे कि जीएफआर हो रहा है पूरा कि नहीं हो रहा। पीछे देखेंगे ब्लड के अंदर गंदगियां जमा हो रही हैं तो इसका मकसद है कि बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रही। और इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स। हम बोलेंगे कि पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है, ये पेशेंट रीनल फेलियर का पेशेंट है। फिर काज का पता लगाएंगे हम लोग। मसला ब्लड में है कि मसला टिब्यूल में है कि मसला बोमेंस कैप्सूल में है, नेफ्रॉन में है, कहाँ मसला है। फिर इसके लिए फिर फिजिशियन भी होगा जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके लिए फिर सर्जन्स भी हो सकते हैं जिनको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये पता लगाएंगे कि वजह क्या है। जो वजह होगी, जो काज होगा, उसी की ट्रीटमेंट होगी। तो वन थिंग विल बी द डायग्नोसिस। अब यहाँ से मैंने बताया आपको कि ये आर्टीरियोल, ये आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा डायग्राम है। ये देखें, ये ग्लोमेरुलस है ये, और ये है क्या? ये बोमेंस कैप्सूल है, और बोमेंस कैप्सूल से यहाँ आ गया तो ये, एंड दिस विल बी एक्चुअली ग्लोमेरुलस। और मैंने बताया सिंपल फिल्ट्रेशन जो है, सिंपल फिल्ट्रेशन जो इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हो जाएगी। अब इसमें कौन फिल्टर हो रहा है? सेल्स के प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। प्लाज्मा में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जो डाइजेस्टेड, जो इस वक्त टोटली डाइजेस्टेड मटेरियल है, जो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर इस वक्त किस हालत में है? अमीनो एसिड की हालत में। ब्लड में इस वक्त जो प्रोटीन तुमने खाए थे, अब प्रोटीन की हालत में है कि अमीनो एसिड्स की हालत में? जो कार्बोहाइड्रेट तुमने खाए थे वो ग्लूकोज की हालत में, जो लिपिड वगैरह तुमने खाए थे वो फैटी एसिड्स की हालत में।
उस हालत में उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे आयन सब कुछ मौजूद है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, जैसे अमोनिया है, जैसे यूरिया है, क्रिटिनिन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं प्लाज्मा में। और फिर एक और चीज़ मौजूद है, वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिनके बहुत फंक्शंस हैं, ये ब्लड में आपने देखे होंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स भी मौजूद है। तो ये जो आपका प्लाज्मा आया है ना, प्लाज्मा, उसमें ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौजूद है 99% वो तो वाटर है। तो वाटर के साथ साथ क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड देन ऑल दीज केटायंस एंड एनायंस एंड वेस्ट मटेरियल, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इसको निकालना है। सब कुछ खराब चीज़ें नहीं है उसमें, अच्छी चीज़ें भी हैं, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड्स भी हैं, फैटी एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडियम है, ये सब काम की चीज़ें हैं। कुछ गंदगियाँ भी हैं, नो डाउट, और पानी भी है, 99% तो पानी है उसमें घुली हुई हैं चीज़ें। ये है 50% ऑफ प्लाज्मा, ये है, ये फिल्टर होना है। अब इसमें जब आप फिल्टर करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें बाकी सब फिल्टर होगा, एक चीज़ फिल्टर नहीं होगी। प्लाज्मा सेल तो नहीं होंगे, WBC नहीं होगा, कोई WBC यूरिन में नहीं आएगा, RBC नहीं आएगा, प्लेटिलेट नहीं आएंगे, प्लाज्मा आएगा। लेकिन प्लाज्मा में तो प्लाज्मा से फिल्टर होगा, कितना? सारा नहीं, कितना? 1/4, जिसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और प्लाज्मा में क्या फर्क होगा? मैंने बताया ना, एक चीज का फर्क होगा, जो नहीं फिल्टर हो पाएगा प्लाज्मा से, वो होंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। यानी प्लाज्मा में हर चीज फिल्टर हो जाएगी। प्लाज्मा से हर चीज फिल्टर हो जाएगी। क्या क्या फिल्टर हो जाएगा? चलो कुछ बताए कोई। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, ग्लूकोज बोलो। कार्बोहाइड्रेट क्या? स्टार्च होगा क्या इसमें? अमीनो एसिड्स, पहले तो बताओ, वो वाटर हो जाएगा। फैटी एसिड हो, ये हो जाएगा, पहले वाटर नहीं होगा? सबसे पहले वाटर हो जाएगा फिल्टर, कितना? 125, और उस वाटर के फिल्टर होने के का फायदा उठाते हुए हर चीज फिल्टर हो जाएगी, उसमें बह जाएगी। क्या चीज? ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड्स भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी, फला फला, ये सारे फिल्टर हो जाएंगे। कुछ चीजें फिल्टर नहीं हो पाती, ये भी मानते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड रहता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए वो बच जाती हैं। हालांकि गंदगियां होती हैं, खारिज करना चाहता था मैं, फिल्ट्रेशन से गई नहीं वो। माने इसका मकसद है कि ये एफरेंट आर्टीरियोल में आई जरूर हैं, लेकिन एफरेंट आर्टीरियोल में आई जरूर हैं, लेकिन फिर वापस ब्लड में चली गई, तो ये तो गंदगी तो वापस गई ही नहीं। चलो मैं इसका आगे बंदोबस्त करता हूं, मैं ऐसे गंदगी को छोड़ूंगा नहीं, इसको जाहिर है किडनी से इसे जाने नहीं दूंगा। अभी तो एफरेंट से निकली है, इफरेंट से जा रही है, इफरेंट के बाद अभी एक और कैपिलरी नेटवर्क बनाने वाले हैं हम लोग। मैं कहीं ना कहीं इसका बंदोबस्त करूंगा, फिलहाल इसको चलो जाने दो, नहीं हुई। लेकिन पीछे जो है वो जो फिल्ट्रेट बना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें पानी तो है, कितना? 125 तो पानी निकल गया उसमें, उसके साथ ग्लूकोज भी गया, अमीनो एसिड्स भी गए, तो ये भी गया, वो भी गया, पोटेशियम, ये फला फला, ये बहुत सारी चीजें इसमें से निकल गई। एक चीज नहीं निकल पाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, ये भी, वो है प्लाज्मा प्रोटीन। ये नहीं निकलेंगी, ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स मुझे जाया ही नहीं करिए, मेरे काम की चीजें मैं कैसे बाहर निकालूं? आपसे काम की चीज तो ग्लूकोज भी थी, वो कैसे निकाला बाहर? वो भी तुमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डाल दिया, वो भी तो यूरिन में निकल जाएगा। वो ये यूरिन में निकलने नहीं देंगे हम लोग, इसको वापस ले आएंगे, तो फिक्र न करो, वापस ले आएंगे इसको। अब उसे फिर प्रोटीन को भी वापस ले आते। प्रोटीन्स को तुम अगर यहाँ से फिल्ट्रेट करके बाहर निकालोगे ना, तो प्रोटीन के वापस आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। नहीं निकल रहा है तो क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि उसके सुराख जो हैं, जितने हैं प्लाज्मा प्रोटीन उससे बड़ी है, इसलिए नहीं निकलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलेगी। अगर निकल गई, सुराख बड़े हैं, निकल गई, तो समझ लो कि यूरिन में पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में फिर वापसी का रास्ता नहीं है। और जब किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस में चेंज आ जाती है, खराबी हो जाती है, कि गड़बड़ हो जाती है अगर कोई, और उसको सुराख बढ़ जाते हैं, तो यूरिन में अपीयर होती है क्या? प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, खासतौर पे एल्ब्यूमिन। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमें शक होता है कि किडनी का फंक्शन सही नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? यूरिन डीआर कराते हैं। यूरिन डीआर कराते हैं, तो यूरिन डीआर में, यानी डिटेल्ड रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, डीआर, यूरिन डीआर कराते हैं, तो यूरिन डीआर में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या होता है। लेकिन यूरिन डीआर में एक चीज लिख के देंगे, प्रोटीन्स, नीचे लिखा हुआ होगा निल।
अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटीन्स नहीं निकल रही, लेकिन प्रोटीन्स के सामने लिखा हुआ +1, इसका मकसद है कि कुछ ना कुछ है। +2, +3, +4, इसका मकसद है कि ये तो बहुत प्रोटीन निकल रही है यहाँ से। फिर हमें पता लगाना होगा कि पूरे 24 घंटे में कितनी प्रोटीन लीक हो रही है मेरी किडनी से। इसको 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन कहते हैं। कैसे पता लगाएंगे 24 घंटे में? कैसे पता लगाएंगे 24 घंटे में कितना खारिज हो रहा है? कैसे लगाओगे? हाँ हाँ, क्या कराएंगे? 24 घंटे का यूरिन, डीआर नहीं कहते उसको। फिर डीआर में तो होता है किसी भी वक्त सैंपल ले लो और जाके दिखा दो, उसमें सब कुछ दिखाएंगे आपको, उसमें सारी डिटेल रिपोर्ट देंगे मुख्तलिफ। ये सिर्फ आप प्रोटीन देखना चाहते हो, वो भी 24 आवर का, तो हमें 24 आवर यूरिन का सैंपल लेना पड़ेगा। 24 घंटे की यूरिन कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हैं? 24 घंटे की 24 आवर की यूरिन। फिर क्या होगा, आप जब लाएंगे लैब में तो लैब वाले आपको एक जग जैसी एक चीज़ देंगे लीटर के, इसमें कम से कम 1-1.5 लीटर 2 लीटर यूरिन उसमें एक्यूमुलेट हो सकती है। फिर आपको बोलेंगे कि आप इस वक्त से लेके अगले दिन इस टाइम तक जो भी यूरिन हो वो आप WC में उसमें वॉश नहीं करें, वो आप इसमें कलेक्ट करें। जब भी आप यूरिन करने जाएं वो वॉशरूम में पड़ा हो उसमें यूरिन करें। 24 आवर का सैंपल उसमें कलेक्ट करें, 1.5 लीटर 1.25 लीटर 2 लीटर जो भी आप जमा कर सकते हैं वो करें। सुबह के टाइम पे उसको बंद करके लैब में दे आएंगे, लैब वाले शाम तक आपको रिपोर्ट दे देंगे। अब क्या सैंपल मिल गया आपको? 24 आवर की, उसमें सिर्फ आपसे पूछेंगे सिर्फ ये कि 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन मुझे आप बताएं। ये आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, शाम तक आपको रिपोर्ट दे देंगे कि भाई इसके अंदर जो आप 24 आवर की यूरिन आपने कलेक्ट करके मुझे दी है, इसके अंदर 4 ग्राम प्रोटीन मौजूद है। 4 ग्राम, 4 ग्राम्स प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन लेवल आपकी क्या हुई? वैल्यू हुई 4 ग्राम। होनी चाहिए कितनी? ऑलमोस्ट निल, और है 4 ग्राम। तो आपको बताऊंगा कि 4 ग्राम है, इसका मकसद ये है कि ग्लोमेरुलस सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ये छलनी फटी हुई है एक तरह से, और ये एक नहीं होगी, ये हजारों ऐसे ग्लोमेरुला का बड़ा गरक हुआ होगा। इसका मकसद है कि इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। और आगे चल के बताऊंगा कि इतनी प्रोटीन लॉस के बाद उस ह्यूमन बीइंग पर असरात क्या होंगे। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फिर एक और डिजीज़ काज करेगी, नहीं डिजीज़ तो नहीं है, वो असरात करेगी यहाँ पे। इतना जब लॉस करोगे तो पीछे प्लाज्मा में काफ़ी रह जाएगी कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि जब यूरिन में ज़ाया हो जाएगा तो पीछे प्लाज्मा में फुल रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा। तो ये भी शक दूर कर लो, पेशेंट का सैंपल ले लो ब्लड का, और ब्लड के सैंपल को भेज दो आप लैब में, और उनको बोलो कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन लेवल मुझे आप बताएं कितनी है। नॉर्मल आएगी? कम आएगी? बहुत कम आएगी। क्यों कम आएगी? यूरिन में जो लूज कर रहा है। और कंफर्म हो गया। अब पता लगाओ कि ये किडनी में मसला क्या है, और फिर किडनी के मसले को देखने के लिए, क्योंकि इसके काजेज एक नहीं होते, काफ़ी काजेज होते हैं, और हर काज का अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलेगा। अल्ट्रासाउंड से आपको मामूली सा पता चलेगा, एग्जैक्टली वो चीज़ देखने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप आना पड़ेगा तुम। यूरिया क्रिएटिनिन से भी सिर्फ फंक्शन आगे पीछे हो गया है, इसका पता चलेगा। तुम्हें सीधा सीधा देखना है आंखों से, हिस्टोलॉजिकली, कि ग्लोमेरुलस में क्या गड़बड़ है। एक आध ग्लोमेरुलस अच्छे से देख लो उसको, इसके लिए करनी पड़ेगी रीनल बायोप्सी। बायोप्सी से आखिरी जो है ना, जो जिससे डायग्नोस होगा वो रीनल बायोप्सी। ये चल के आगे आपको बताएंगे हम। तो आप यहाँ पर देख चुके क्या, सिंपल फिल्ट्रेशन, जिसमें मैंने बताया कोई ब्लड सेल्स नहीं जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह प्लाज्मा जाएगा, उसका वाटर भी क्वार्टर जाएगा सिर्फ, और उस वाटर में भी क्वार्टर में एक चीज़ ना माइनस होगी, वो होगी क्या? प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो नहीं होगी। इसका मकसद यह है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और प्लाज्मा में फ़र्क क्या हुआ? दोनों एक जैसे हैं, सवाए किसके? प्लाज्मा प्रोटीन के। तो इसका मकसद यह है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेसिकली इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा ही है दरअसल, पर फ़र्क क्या है? उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नॉर्मली नहीं है। तो ये फिल्ट्रेट और इसमें दोनों ये फ़र्क होता है। और दूसरा यहाँ पर ये दिखाया मैंने
कि प्रेशर क्यों ज्यादा है, इतना ग्लोमेरुलस में क्यों इतना ज्यादा प्रेशर है। नंबर 1 सबसे बड़ा जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा है, ब्लड ज्यादा आ रहा है, इफरेंट का छोटा है, ब्लड कम जा रहा है। तो हम देखना ये है कि प्रेशर आखिर है कितना। ये जो इतना ज्यादा प्रेशर है, तो ये प्रेशर क्या पड़ेगा, अंदर की तरफ कि वाल की तरफ, वाल की तरफ। इसको हम ग्लोमेरुलर, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या होता है ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो इतना मेंटेन हुआ है ना, ये इतना जो डेवलप हुआ है, ये है 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इतना प्रेशर है। लेकिन एक प्रेशर तो ये है जो वाल पे पड़ा है, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर निकलेगा। लेकिन अंदर जो है एक और चीज बैठी हुई है, वो कहेगी कि ये फ्लूइड जो है, जो वो पानी बाहर निकल रहा है, वाटर जो बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, ये न जाए, उसको बाहर जाने से रोकेगी। दो प्रेशर से, एक ने बच्चा कह रहा है मैं जाऊं, और पेरेंट्स बोलेंगे कि ना जाओ। ये दोनों जो हैं वो एक तरह से एक दूसरे को काउंटर करेंगे। तो जो बाहर प्रेशर बाहर जा रहा है, जो फिल्टर कर रहा है, वो है कितना 55, यार मैं रखा 45 55 नहीं। और जो रोक रहा है, यानी पानी प्रेशर डाल रहा है वाल पे कि मैं बाहर जाऊं, और मैं अंदर से कोई ऐसी चीज है जो उस पानी को रोक रही है। ये जो प्रेशर रोक रहा है, ये रोकने वाला अंदर कौन है, ये रोकने वाले हैं अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन से खास तौर पे, एल्ब्यूमिन। क्या काम करते हैं, एल्ब्यूमिन मैग्नेट की तरह वाटर मॉलिक्यूल को खींचते हैं अपनी तरफ, और जब वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे तो वाटर बाहर जाने की कोशिश करेगा कि रुकने की कोशिश करेगा। ऐसे प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो रोकने वाला प्रेशर है ना, ये है 30, और बाहर जाने वाला है 45। ये 55 लिखा हुआ है, 45। तो फ्लूइड कह रहा है कि मैं बाहर जाऊं, बच्चा कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, 45 के प्रेशर से ख्वाहिश इतनी है। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं जाओ बाहर, ठंड है, फला है ये, लेकिन ये कह रहे हैं उनका असर है 30 का, तो चला जाएगा। ये जो चला जाएगा तो 45 के प्रेशर से कि 15 के प्रेशर से, क्योंकि जाने वाला प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है 45, और रोकने वाला है कितना, तो कितने प्रेशर के साथ जाएगा, नेट प्रेशर के साथ। और नेट कितना होगा, इसको कहेंगे हम फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो इस वक्त फ्लूइड कितने प्रेशर के साथ बाहर जा रहा है, 15 के प्रेशर के साथ। अगर तुम्हारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम होता तो जीएफआर ज्यादा होता कि कम होता। ये अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन अगर कम होता तो ये 30 होता कि 25 होता फॉर एग्जांपल। लेकिन वो जो ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो तो वही 45 होता ना, इधर 25, तो प्रेशर नेट कितना 20। तो अब की बार फिल्ट्रेशन स्लो होती कि उससे ज्यादा होती। तो इसका मकसद है कि प्लाज्मा प्रोटीन का होना फायदेमंद है कि नहीं है, तो वो होना फायदेमंद है। तो ये इस फिल्ट्रेशन प्रेशर के साथ फ्लूइड बाहर आ रहा है, और तुम बोल रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आ गया 125 एवरी मिनट, तो इसको जीएफआर कहते हैं। तो जीएफआर को किसने मेंटेन किया, फिल्ट्रेशन प्रेशर। और इसका दारोमदार किस चीज पर है, उसका दारोमदार है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पर और इसके डिफरेंस पर। चलो वो तो आ गया यहाँ पर, ये यहाँ आ गया। तो इसको मैंने आपको बताया कि ये कितना है टोटल मिला के, कितना 125 ml जो है वो ये प्रेशर, इसको हम जीएफआर कहते हैं। और 125 ml, तो इसका मकसद है कि 125 जो है ये तो है 125 कितने में, 1 मिनट में। इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी देखें आप किडनी की, 125 कितनी देर में, 1 मिनट में। तो 1 घंटे में कितना होगा, कैलकुलेटर से कर लो। कितना, क्या कर रहे हो, ठीक है। ये कितने में, ये 1 आवर में, तो 24 में कितना, यानी 1 दिन में कितना। यार ये तो करके देखना, ये तो मुझसे नहीं होगा। चलो 7500 को 24 से मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, 1,80,000 ये क्या ml, इसको लीटर में कर दो तो पॉइंट करके, यानी 1000 से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो ये 3 जीरो चले जाएंगे, रफली 180 लीटर, 180 लीटर अच्छी खासी टैंक हो जाती है पानी की। इतनी कैपेसिटी होती है 2 किडनीज में फिल्टर करने की, अच्छी खासी टैंक जो होती है, टैंक 180 लीटर की एक टैंक, 200 लीटर की जो टैंक होती है ना, इतने टैंक जितना फ्लूइड ये फिल्टर करने की सलाहियत रखता है। तो इसका मकसद क्या हुआ, ये क्या फिल्टर हुआ है, 180 प्लाज्मा फिल्टर हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ब्लड कितना आया है, ज़ाहिर डबल होगा, माने कितना 360 लीटर, 360 लीटर ब्लड आया है। 360 लीटर ब्लड होता है कि होता है 5 लीटर है, 5 लीटर होता है। अगर 5 लीटर होता है तो इसको अगर 5 से मैं ज़रब कर दूं, माने तुम्हारा ब्लड दोनों किडनी से एक दिन में 70 दफा पास होता है, 70 टाइम्स पास होता है। इससे क्या जाहिर हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि आपका ब्लड दोनों किडनी से 1 घंटे में 3 दफा पास होता है, तब जाके साफ होता है। और ये 1 दफा 1 घंटे में 3 दफा, ये 5 लीटर ब्लड 3 दफा सर्कुलेट हुआ, और ये 3 दफा सर्कुलेट होने से ये सिलसिला सही हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम हर मिनट में 1 लीटर उसको देते हैं, तभी जाके ये 3 दफा में साफ हो जाता है। अगर तुम उसको देते ही कम उसकी साइज के हिसाब से, तो क्या 3 दफा जाता, क्या नहीं, ये 1 दफा भी नहीं, एक बहुत ही कम दफा जाता, तो क्या साफ हो जाता ब्लड आपका, नहीं हो पाता। इसलिए ब्लड ज्यादा देते हैं आप। 2 फायदे होते हैं, एक तो जल्दी जल्दी फिल्टर हो जाएगा, और दूसरा प्रेशर मेंटेन होगा, और प्रेशर होगा तो फिल्ट्रेशन से प्रेशर। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको GFR का पता चला, और ये सारी सिलसिले यहाँ पर पता चलेंगे इस तरीके से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 125 आपने फिल्टर किया, जिसको बोलते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसमें सब कुछ मौजूद है, ग्लूकोज ये वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्या इसको यूरिन बनने दोगे क्या? सबसे पहला काम तो ये करोगे कि ये जो फिल्टर हुआ है, ये जो जा रहा है, ये इसको यहां जाते जाते इस रास्ते में 124 मिलीलीटर क्या करोगे, वापस ले आओगे। उसको क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। कहां से रीअब्जॉर्ब होगा, ट्यूब्यूल से। कौन से ट्यूब्यूल से, नेफ्रॉन के 3 ही तो ट्यूब्यूल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल, एक डिस्टल, जोड़ने वाला लूप ऑफ हेनली, बात ही खत्म, समझ गए। प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ये दोनों होते हैं कहां पर, कार्टेक्स में। लूप होता है किसमें, मेडुला में। अगर ये इस वक्त 124 इधर से गुजरा, 125 इधर से गुजरा, तो यहां से 124 को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, रीएब्जॉर्ब जिसको बोलेंगे, और किस में डाल देना है, ब्लड में डाल देना है। आप बोले सर ट्यूब्यूल के बाहर कौन सा ब्लड है, ट्यूब्यूल के बाहर कैपिलरी नेटवर्क अभी नहीं बताया क्या, और वो कैपिलरी नेटवर्क कहां से बना था, इफरेंट आर्टीरियल के टूटने से बना था। टूटने से बना था तो यहां पर, और नीचे भी ये डाल दिया। तो इसका मकसद है कि यहां से जाता हुआ ब्लड, उसमें से यहां से जाता हुआ जो ब्लड है, ये किसको खींच लेगा, इस फ्लूइड को खींच लेगा जो 125 है, और रास्ते में इधर से, यहां से और इधर से क्या खींच लेगा, फ्लूइड को, वाटर को खींच लेगा। कितना, 120। इतना कुछ के सिर्फ यहां से ही नहीं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहां से भी, इधर से भी ब्लड, इधर से भी फ्लूइड वापस चला जाएगा। बिलाखिर कितना, अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक पहुंचते पहुंचते 124 बैक इनटू द ब्लड। तो निकाला कितना, 1 ml, 1 ml पर मिनट, तो 60 ml पर आवर, ऑलमोस्ट 200 ml पर 3 आवर्स। और ये थोड़ा 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 करके किसमें जमा हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ से जैसे 150 से ज़्यादा हो गया, डिज़ायर शुरू हो गया, यार यूरिन आ रहा है, थोड़ा सा टाइम, बस लेक्चर ख़त्म हो तो जाके मैं यूरिन पास कर लूँ। और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगी, और ज़्यादा डिज़ायर, और ज़्यादा डिज़ायर, और ज़्यादा डिज़ायर, और कोशिश करके आप इजाज़त मांग के आप यूरिन पास करने चले जाएंगे, क्योंकि अब पेन डेवलप हो रहा है और जल्दी से मैं यूरिन पास करके आ जाऊँ। और कोशिश करके यूरिन को इतना ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। और यहाँ से ये सिलसिला इस तरीके, इसका मकसद है कितना वाटर आपने वापस ले लिया, 124।
4 ले लिया, 1 ml आपने दिया, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में प्लाज्मा प्रोटीन तो नहीं थी, ये तो शुक्र है, लेकिन बाकी चीज़ें तो थी ना। क्या था? सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, बाइकार्बोनेट आ गए, ये आ गया, वो आ गया, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड्स आ गए। तो ये क्या करेंगे? इनको भी रीअब्सॉर्ब कराएंगे, क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं। कितना रीअब्सॉर्ब कराएंगे? अगर ज़रूरत पड़े तो सारा का सारा रीअब्सॉर्ब करा देंगे। ग्लूकोज पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब करेंगे। अभी मैंने आपको कितना बताया कि कितना वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू एंटायर एलिमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन? 124। इस 124 में सबसे ज्यादा कहां होता है वाटर रीअब्सॉर्ब? सबसे ज्यादा होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कितना? 2/3। 100 में से, यानी टोटल में से 67%, 2/3, 67% इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीअब्सॉर्प्शन इतनी होती है। अभी सिर्फ 67% और वाटर अकेला नहीं जाता, सोडियम के साथ जाता है। तो सोडियम भी कितना? 67%। फिर पोटेशियम भी, तो ये भी, वो भी, ये सारी चीज़ें यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा मटेरियल कहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा? इधर ही से। और इधर से सिर्फ ये होगा क्योंकि अभी ग्लूकोज भी तो आया था ना यहाँ पर। तो ग्लूकोज को मैं यूरिन में बहा दूँ कि इसको भी रीअब्सॉर्ब करा दूँ? इसको भी रीअब्सॉर्ब करा दूँ। अमीनो एसिड आए थे बाहर निकालने के लिए, वो तो काम की चीज़ है, मैं कैसे बाहर निकलने दूंगा? सारा का सारा रीअब्सॉर्ब। तो ये तो 100% ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कहाँ से? प्रॉक्सिमल। तो सारा कुछ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ है, लेकिन उसके बाद आप इस पे कम लोड डालें। हमने 124 में ऑलमोस्ट 75 ml सिर्फ कहाँ से? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। और उसके बाद यस, लूप ऑफ हेनली से भी अच्छा खासा, कोई 25% तक। और बाकी जो 5-6% रह जाता है वो कहाँ से? डिस्टल से। और 2-3% रह गया तो फिर कलेक्टिंग डक्ट से भी। बस आखिर में तुम ये करना कि कलेक्टिंग डक्ट से सिर्फ पर मिनट 1 ml माइनर कैलेक्स में भेजना। माइनर कैलेक्स में भेज दिए तो यहाँ से कम नीचे नहीं होगा, आगे पीछे नहीं। बस ये जो है, अब इसका नाम यूरिन पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक इसका नाम क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ इसका नाम था ट्यूबुलर फ्लूइड, यूरिन नहीं। यूरिन लफ्ज पड़ेगा सही मानों में कब? जब वो माइनर कैलेक्स के अंदर आएगा, क्योंकि अब कोई चेंज नहीं आएगी। ये जो आखिरी चेंज आ गई वो कलेक्टिंग डक्ट में आ चुकी। और यहां से जब आपने ये सिलसिला देखा, तो ये तो यहां पर हमने देखा, तो ये इसको क्या कहेंगे? रीअब्सॉर्प्शन। तो रास्ते में क्या हुआ है? रीअब्सॉर्प्शन हुई है। आप कहते हैं किसी किसी बंदे में यूरिन में शुगर भी आ जाती है। ये तो आपने कहा कि 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, बात समझ में आती है, 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों में यूरिन में ग्लूकोज मौजूद होता है, +1, +2, +3। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन। अभी बोला कि 100% ही हो जाती है, तो फिर यूरिन में कैसे अपीयर हुई? इसका मकसद यह है कि रीअब्सॉर्प्शन की भी सलाहियत एक हद तक होगी। समझ रहे? इसकी सलाहियत, इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी एक हद तक होगी। अगर तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल, ब्लड में ग्लूकोज अगर 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 170 शुगर लेवल है तुम्हारी, तो यहां से जो फिल्टर होगा ग्लूकोज सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। समझे? सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यूरिन में अपीयर होगा क्या? जब सब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन में अपीयर नहीं होगा। यूरिन डीआर कराओगे तो बोलेंगे ग्लूकोज नील। लेकिन अगर ये 170 से बढ़ गया, 180, 190, 120 ये हो गया अगर, तो 170 तक तो ये कर लेता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर मैक्सिमम। माने क्या? दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब्यूल टू रीअब्सॉर्ब दैट सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट? ग्लूकोज। कितना है इसमें? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी? 170। इसको हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड माने मैक्सिमम कैपेसिटी
टू रीअब्सॉर्ब दैट सोल्यूट। ये है क्या? थ्रेशोल्ड। ये मैं क्या है? ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। इससे अगर तुमने 2-3 मिलीग्राम भी बढ़ा दिए ना अगर, तो वो 170 तक तो जाएगा, बाकी वाला नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन के लिए खास जगहें होती हैं, और वो जगहें कितना लोड बर्दाश्त कर सकती थी? 170 का। वो लोड पूरा जब फिल हो जाएगा तो बाकी जो आएंगे वो क्या करेंगे? देखो यहाँ सीटें हैं 50, बंदे आ गए हैं 52, तो 20 उसमें 50 तो बैठ जाएंगे। क्या सारे ही बैठ जाएंगे कि 2 खड़े रहेंगे? तो ये जो 2 खड़े रहेंगे वो बाद में यूरिन में चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्या? ट्यूबुलर मैक्सिमम रीनल थ्रेशोल्ड। अगर रीनल थ्रेशोल्ड से कोई चीज बढ़ गई तो वो यूरिन में अपीयर होगी। तो इसका मकसद ये है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज अपीयर हो तो क्या ध्यान जाएगा कि इस बंदे के अंदर ब्लड में 170 से ज़्यादा है, और 170 से ज़्यादा है तो शक है कि शायद ये डायबिटिक है। लेकिन उसका फिर पता लगाएंगे थ्रू चेकिंग योर ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड, फिर ब्लड में पता लगाएंगे। इसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। इसको तो वर्ड आपने सुना ना, रीनल थ्रेशोल्ड, और हर सोल्यूट का रीनल थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। ये नहीं कि अगर इसका 170 है तो सोडियम का भी 170 होगा, नहीं, उसका कोई अलग, पोटेशियम का अलग, कैल्शियम का अलग, तो इसका अलग, उसका अलग, इस सबका अलग अलग रीनल थ्रेशोल्ड होता है। तो ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड वैसे 180 है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में 170 भी लिखा हुआ, कहीं 160 भी लिखा हुआ, लेकिन 180, तो इसको हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ, और ये किधर हो जाता है? प्रॉक्सिमल में हो जाएगा। लेकिन अगर इधर से रुक गया ना अगर, क्योंकि उधर तुम्हारा 180 190 था, तो जो एक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा? वो पास ऑन हो जाएगा। पास ऑन हो जाएगा, आप बोलेंगे सर आगे कहीं रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, नहीं, रीअब्सॉर्ब सिर्फ किधर होगा? प्रॉक्सिमल में होगा। वो प्रॉक्सिमल में अगर लोड ज़्यादा बढ़ गया ना तो फिर अब ये यूरिन में ही अपीयर होगा। अब इसकी मुलाकात हम यूरिन से करेंगे, उधर यूरिन में इसकी मुलाकात होगी हमारी ग्लूकोज से, और फिर बोलेंगे कि ग्लाइकोसूरिया है। ग्लूकोज +2 +3 कितना है? क्वांटिटी भी बता देंगे आपको, +1 +2 है। फिर क्या करेंगे? फिर आपको बोलेंगे कि आप शुगर लेवल अपनी ब्लड में भी करा लें। इसको बोलते हैं हम क्या? रीअब्सॉर्प्शन। तो यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रीअब्सॉर्प्शन। अब रीअब्सॉर्प्शन के बाद मैंने बताया ना कि ग्लोमेरुलस में इतना जल्दी फ्लूइड घूम जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? एक तो प्रेशर ज़्यादा है, फिल्ट्रेशन भी हो जाएगी, तो उधर ब्लड रुकेगा कि जल्दी पास हो जाएगा? तो जल्दी पास हो जाएगा तो बहुत सारी जो गंदगियां हैं वो वहाँ फिल्टर नहीं हो पाएंगी, लेकिन मुझे उनको निकालना है। या नहीं हो पाएंगी तो कहेंगे चलो नहीं हो पाए यार, कोई मसला नहीं है, ऐसा क्या? नहीं, वो निकालनी है हमें। किस में डालनी है? ब्लड से निकालनी थी, वो यहाँ से नहीं हो सकती। और इसमें कौन कौन नहीं हो सका? इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकेंगी, जैसे अमोनिया, जैसे क्रिएटिनिन, ये सुना होगा आपने, जैसे यूरिया, इस किस्म की चीज़ें यहाँ से फिल्टर, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से वो यूरिन नहीं बन पा रही हैं। तो तरीका क्या है फिर? और तरीका है कि कोई और फिल्ट्रेशन करवाओ, कहीं और से फिल्टर करवाओ। कहीं से? कहाँ से? कैपिलरीज से। भाई कहाँ से कराते हो फिल्टर? जिस उस वेसल से कराते हो जिसकी वाल थिन होती हैं। वो थिन किसकी होती हैं? कैपिलरीज की। और कैपिलरी किन जगहों पर मौजूद हैं? 2 जगहों पर, एक के ग्लोमेरुलस पर, उधर तो नहीं हो सका, तो बाकी क्या है? बाकी आपका है ये पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क से। और ये पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क किसके अराउंड होता है? 3 चीज़ों के अराउंड। कौन सी 3 चीज़ें? एक प्रॉक्सिमल के अराउंड, एक डिस्टल डायरेक्ट कॉर्टेक्स में, और एक लूप ऑफ हेनली के अराउंड। इसका मकसद ये है कि वो जो गंदगियां तुम बाहर निकालने जा रहे हो, जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हो सकी, वो कहाँ से निकलेंगी? कैपिलरीज से निकलेंगी। कैपिलरी से तो निकलेंगी, जाएंगी किधर? ये देख रहे हैं आप, ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, और ये तो टूट के ये बनी है क्या? पेरिटिब्युलर कैपिलरीज। कुछ प्रॉक्सिमल के अराउंड, कुछ डिस्टल के अराउंड, और कुछ लूप के अराउंड। तो ये खास तौर पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल के अराउंड जो कैपिलरी नेटवर्क है, जो टच कर रहा है किसको? टिब्यूल्स को। तो अपने हाथ से ये कैपिलरीज जो हैं अपने हाथ से लीक करके किस में डाल देंगी? टिब्यूल में डाल देंगी। ये है कैपिलरी की वाल, और ये है किसकी वाल? टिब्यूल की वाल। ये दोनों टच में गए से। टिब्यूल की वाल भी थिन है और कैपिलरी की वाल भी
थिन है। टिब्यूल की वाल इतनी थिन नहीं है, कैपिलरी की वाल थिन है। तो कैपिलरी से लीक होके जब जाएगा टिब्यूल में तो क्या आसानी से जा पाएगा? जैसे ग्लोमेरुलस में गया था, बोमेंस कैप्सूल में गया था, कैसे जा पाएगा? फिल्ट्रेशन नहीं होगी, फिल्ट्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी फिल्ट्रेशन? क्योंकि कैपिलरी की वाल तो थिन है, टिब्यूल की वाल थिक है। यहां ऐसा नहीं था, यहां देखो कैपिलरी की वाल भी थिन थी और बोमेन भी थिन था, इधर से हो गई थी फिल्ट्रेशन। किसी एनर्जी की जरूरत थी क्या? नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का सफिशिएंट था। यहां ऐसा नहीं है, यहां से बाहर पुश करेंगे हम, बिल्कुल पुश करेंगे, बाहर पुश करेंगे तो आसानी से हो जाएगा कि ये रोकेगा, इसको रोकेगा। तो यहां पर कुछ सिस्टम्स लगे होंगे जो इसको एनर्जी यूज करके बाहर पुश करेंगे। जैसा नहीं होता है कि ऊपर से अगर तुम जग पानी का ऐसे डाल के ऐसे करो तो किसी एनर्जी की जरूरत होती है कि धड़ाम से नीचे आ जाता है पानी, लेकिन यही पानी जमा होकर नीचे वाला ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा कि इसके लिए पंप की जरूरत पड़ेगी? तो नीचे से ऊपर उठाने के लिए तुम्हें एक्टिव पंप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां से जो इस वक्त बाहर लीक होगा ना, ये कौन, ये जो गंदगियां बाहर लीक करेंगे, जो फिल्टर नहीं कर सके यहां से करेंगे, इसके लिए तुम्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए तो ये किस में आएगी? ब्लड से किस में? टिब्यूल में। और ब्लड से टिब्यूल में आएगी तो आगे कहाँ चली जाएगी? यूरिन में। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए क्या सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है कि ये प्रोसेस भी है? इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रीशन। क्या बोलते हैं? तो यूरिन फॉर्मेशन के दो प्रोसेसेस हैं, नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और नंबर 2 ट्यूबुलर सीक्रीशन। और इस दौरान माइनस क्या करके गए थे तुम? रीअब्जॉर्प्शन। ये 3 प्रोसेसेस यहां पर मेंटेन होंगे जो हम यहां पर देखते हैं। तो ये 3 प्रोसेसेस कौन से हुए? नंबर 1 फिल्ट्रेशन, जिसको हम कहेंगे ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में तुमने क्या देखा? वहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में तुमने देखा उधर के एक खास प्रेशर है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर प्रेशर वो 45 था, लेकिन ऑस्मोटिक 30 था, तो उसका नेट बन गया 15 से ये बाहर निकल गए। कौन निकला है? प्लाज्मा। कितना प्लाज्मा? वो आपने देखा 124 125। देखिए बनेगा यूरिन सिर्फ 1 ml, तो रास्ते में एब्जॉर्ब हो गया। सबसे ज़्यादा किधर? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, उसके बाद दूसरे नंबर पर लूप में, और उसके बाद तीसरे नंबर पर डिस्टल में, फिर कुछ कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में भी। और ये सब सिलसिले यहाँ पर होंगे और आखिर में जो बनेगी वो यूरिन होगी। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और भी ऐड हुई हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें होंगी सारी वापस, लेकिन जो दूसरी चीज़ें होंगी उसमें से उतनी चीज़ें वापस करेंगे जितनी हमें दोबारा ज़रूरत है। जो ज़्यादा है एक्सेस में, सोडियम एक्सेस में है तो बाहर निकालो, क्योंकि सोडियम जो है वो एक्सेस में अंदर आएगा तो फिर ज़ाहिर है उसकी लेवल बढ़ जाएगी, तो हम बाहर निकालेंगे और कुछ वापस ले आएंगे। पोटेशियम तुम्हारा बढ़ गया है तो बाहर निकालो। हाइड्रोजन बढ़ गया है, जैसे तुम्हारी जो ब्लड है उसमें एसिडोसिस हो गया है, एसिडिक हो गई है तुम्हारी ब्लड, तो क्या निकालेंगे बाहर? हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये सारी सिलसिले ये इस तरीके से। तो क्योंकि किडनी के फंक्शंस में, तो इसका मकसद है कि किडनी का एक फंक्शन क्या है? किडनी का एक फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस। आप में सोडियम ज़्यादा है, प्लाज्मा में इस वक्त सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट है, तो ये 3-4 चीज़ों की इलेक्ट्रोलाइट्स हम कराते हैं। आप सैंपल लेके भेजेंगे और बोलेंगे कि भाई सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करके दो, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करके देंगे। दिखाएंगे कि सोडियम जो है वो 135 से 145 मिलीमोल्स पर लीटर होना चाहिए, वो बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो क्या करना होगा? एकदम से सोडियम की आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी, तो हम सोडियम क्लोराइड की ड्रिप लगा देंगे ताकि सोडियम की लेवल उसकी मेंटेन हो जाए। पोटेशियम अगर आपका कम है बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम को होना चाहिए कोई तकरीबन 3.8 से लेके कोई 5.1 तक मिलीमोल्स पर लीटर तक या मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर तक, लेकिन अब पता चला कि वो तो 3.5, 3.3 और 2 है, तो आप क्या करेंगे? पोटेशियम क्लोराइड का ड्रिप में एम्प्यूल डाल देंगे, तो पोटेशियम लेवल मेंटेन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पर करते हैं। ये वैसे एक नॉर्मल बंदे में ज़रूरत ही नहीं होती, किडनी ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन कर देती, आपको पता ही नहीं चलता। कभी कराया है आपने अपना इलेक्ट्रोलाइट्स? ज़रूरत ही नहीं, तो आप कराती नहीं, ये सारा काम किडनी करती है। क्या सिर्फ यही करेगी? 124 ml रीअब्जॉर्ब कर देती है किडनी,
इसका मकसद ये है कि अगर तुम्हारा ब्लड, तुमने 4 गिलास पानी पी लिया है, तुम्हारा वॉल्यूम जो है प्लाज्मा का या ब्लड का वॉल्यूम आपका 5 लीटर से 5.5 लीटर हो गया है, तो अब की बार किडनी अभी भी 124 रीअब्जॉर्ब कराएगी कि कम रीअब्जॉर्ब कराएगी? और ये कम रीअब्जॉर्ब कराएगी तो यूरिन जो है वो पर मिनट 1 ml के पर मिनट 2 ml, समझ ले, पर लीटर 2 ml। तो इसका मकसद है कि यूरिन पास करेंगे 200 ml हर 3 घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद, तो आपको बार बार यूरिन आएगा जब तक आपका मेंटेन नहीं हो जाएगा। इसका मकसद यह है कि ये फ्लूइड को मेंटेन करने का, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं, फ्लूइड मेंटेन करने का रोल प्ले करेगा कौन? वंस अगेन किडनी। तो ये वाटर का बैलेंस जो होता है ये भी किडनी मेंटेन करती है, किडनी को इसे नहीं समझना सिर्फ। और इसके साथ साथ ये आपका जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है ना, उसमें भी किडनी का बड़ा रोल है। आपसे कैसे रोल है देखें आप, अगर आपका ब्लड फ्लो इस वक्त कम हो जाए, यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, बीपी कम हो गया आपका, जैसे मतलब ब्लड प्रेशर हमारा कम हो गया, जब आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा कम, तो सबसे पहले कौन सा आर्गन उसका असर कबूल करेगा? आप बोलेंगे जानबूझ के हाँ किडनी, क्योंकि किडनी का चैप्टर चल रहा है ना इसलिए, ऐसे ही बोलेंगे ना? हाँ, तो हाँ आप सही कहेंगे। ये वजह क्या है? वजह यह है कि किडनी सबसे ज़्यादा शेयर ले रही है। आपका ब्रेन भी, टोटल आपके पास ब्लड 1 मिनट में कितना देता है हार्ट? 5 लीटर। 5 लीटर में किडनीज ले रही है 1 लीटर, इतना ब्रेन भी नहीं लेता। किडनी ले रही है 1 लीटर, इसलिए नहीं कि किडनी को लालची है, उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन, उसको बहुत चाहिए इतना, नहीं नहीं, वो आपका ब्लड जल्दी फिल्टर करना चाहती है, इसलिए 1 लीटर पर मिनट देगी। तो 5 मिनट में, चलो 15 मिनट में 5 लीटर घूम जाएगा वहाँ से, और 3 घंटे में यही ब्लड 3 दफ़ा घूम जाएगा, साफ हो जाएगा। तो किडनी इससे, तो इसका मकसद अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर गया तो सबसे ज़्यादा उसका असर कौन कबूल करेगा? जो सबसे ज़्यादा शेयर ले रहा है। कौन ले रहा है? तो किडनी का जो रीनल फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो रीनल ज़्यादा ब्लड ले रही है कि कम ले रही है? कम ले रही है। इस हालत में तो हम उसको कहेंगे, अगर बीपी फॉल करेगा तो हम कहेंगे कि रीनल हाइपोक्सिया हो गई है। अगर वो ज़्यादा नहीं गया, कम गया, तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगी कि कम होगी? तो उसको हम कहेंगे रीनल हाइपोक्सिया। हाइपो मीन्स लो, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन, तो रीनल हाइपोक्सिया। और ना रीनल हाइपोक्सिया हो गया तो किडनी के अंदर एक हार्मोन बैठा हुआ है बड़ा सेंसिटिव, उस हार्मोन का नाम है रेनिन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रेनिन। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? रेनिन है। इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो गया तो रेनिन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर रेनिन प्रोड्यूस हो गया तो रेनिन का असर ये होता है कि ये बॉडी में जब घूमेगा ब्लड में, तो ये हार्मोन है, हार्मोन कहाँ आते हैं? ब्लड में। और ब्लड में जैसे ये घूमेगा तो ये कैपिलरी से, कैपिलरी का जो एंडोथेलियम है वहाँ से स्क्रैप करेगा एक और हार्मोन को। उस हार्मोन का नाम है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1। ये इनएक्टिव होता है, ये काम अभी नहीं करेगा। जब ये घूमेगा पूरे ब्लड में, ये भी तो कहाँ घूमेगा? स्क्रैप हो जाएगा, ये ब्लड में शामिल हो गया। और घूम के जब शामिल होके वो लंग से भी तो पास होगा ना। ये ब्लड लंग से नहीं पास होता है क्या? ब्लड वहाँ भी होता है। तो लंग से जब ब्लड पास होगा तो वहाँ मौजूद होता है एक हार्मोन, बल्कि एक एंजाइम, उसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको बोलते हैं एस। कौन है ये? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ये एक्टिव है। क्या है? ये एक्टिव है। एक्टिव है तो इसका काम क्या होगा? ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, ये एकदम से इधर उधर घूम के, नाम से ही जाहिर है इसका नाम है एंजियो। एंजियो कहते हैं वेसल्स को, टेंस कहते हैं कंट्रैक्शन को। तो ये वेसल्स को क्या करेगा? कंट्रैक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्ट करेगा। बड़ा पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे वेजो कंस्ट्रिक्ट करेगा तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम कि ज्यादा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हुआ क्या था? ब्लड प्रेशर क्या था? कम। वो हो क्या गया अब? ज्यादा।
इसका मकसद है कि अगर कम हो गया तो ये ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपके कहे बगैर। किया किसने? किडनी ने। किसके ज़रिए? रेनिन के ज़रिए। तो रेनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और फंक्शन, तो इसका मकसद है क्या? सिर्फ ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, कि ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन। तो ये ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में भी रोल बड़ा ज़बरदस्त प्ले करेगा। किसके ज़रिए? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के ज़रिए। उसके अलावा अगर मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है, ब्लड भी सफिशिएंट है, 1 लीटर जा रहा है, लेकिन इस पे ध्यान देना, ब्लड 1 लीटर जा रहा है आपके किडनी में, कोई मसला है किडनी के साथ? नहीं। लेकिन वो जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर जो आरबीसी हैं, उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो कम है। तो किडनी को मसला है कि नहीं है? किडनी को सिर्फ 1 लीटर चाहिए, 1 लीटर घास चाहिए उसको, कि 1 लीटर ब्लड चाहिए? और ब्लड किस लिए चाहिए? उसमें उसको 13-14 हेमोग्लोबिन चाहिए। ये ब्लड की क्वालिटी अच्छी है कि खराब है? तो अगर ब्लड की क्वालिटी खराब है तो इसका मकसद ये है कि ये भी मसला जो है ये किडनी हल करेगी। क्यों हल करेगी? क्योंकि उसके पास से वो जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो हाइपोक्सिया है। और जब हाइपोक्सिया है तो इसके पास एक हार्मोन मौजूद है, उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो रेड को कहते हैं। ये आरबीसीज को क्या करेगा? ये इरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट करेगा कौन? किडनीज। वो किडनी जैसे सीक्रेट करेगी वो ब्लड में आएगा, ब्लड में आके उस जगह पर जाएगा इरिथ्रोपोएटिन जहां आरबीसी की फैक्ट्री है, और वो है कौन? बोन मेरो। कौन है? बोन मेरो। ये बोन मेरो में जाएगा, उधर क्या करेगा? आरबीसी की लेवल को बढ़ाएगा, और आरबीसी की लेवल को बढ़ाएगा 2, 2.5, 3 हफ्ते के अंदर आपका वापस आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो आपकी हेमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगी। तो आरबीसी की और हेमोग्लोबिन की लेवल को मेंटेन करने का रोल किसने प्ले किया? किडनी ने। तो किडनी के अंदर अगर डैमेज हो जाता है ना, अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस पेशेंट के अंदर एनीमिया भी हो जाती। वजह उसकी क्या है? क्या बोन मेरो का मसला है? नहीं, उसका मसला है इरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट नहीं हो पाता उस पेशेंट के अंदर। तो एक और फंक्शन क्या हुआ? तो किडनी जस्ट किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है। अभी तो आपको लगे ऐसे रहा है जैसे ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड हो, ये तो हार्मोन ही हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इतने हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये। अभी तो आप रुके हैं यहाँ पर, अभी देखें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करता है। विटामिन डी फाइनली विटामिन डी सिंथेसाइज एक्टिवेट इधर होती है। आखिरी स्टेप विटामिन डी को एक्टिवेट करने का किधर होता है? यहां पर। उसको उस एक्टिव विटामिन डी को कहते हैं विटामिन D3। इसको हम कहते हैं कैल्सिट्रायोल। ये क्या है? ये एक्टिव विटामिन डी है। वैसे विटामिन डी तो तुम्हारे स्किन से भी बन जाता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। यहां से जब सनलाइट पड़ती है तो यहां से बनता है कोलीकैल्सिफेरोल। ये विटामिन डी है, इनएक्टिव। इसको एक्टिव होना है। ये एक्टिव होने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट करता है लिवर को। पहले अपनी प्राइमरी कहां से पास करता है? लिवर से। लिवर क्या करेगा? लिवर इस विटामिन डी जो है, इस विटामिन डी जो इनएक्टिव है, उसको पहले नंबर कार्बन एटम पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगा देगा। कौन? लिवर। तो क्या एक्टिव हो गया? नहीं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है कौन सी पोजीशन पे? ये कार्बन जो है उसको नंबर 1 कार्बन एटम पे क्या लगाया है हमने? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है। तो हम उसको बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। एक्टिव है कि अभी इनएक्टिव है? ये जब यहां से गुजर के किडनी से पास होगा तो किडनी एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देगी इसके कार्बन नंबर 25 पे, 25वें नंबर कार्बन एटम पे।
फिर हम ये क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये है तुम्हारा विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी जो काम में आ रहा है। तो इसका मकसद ये है कि अगर किडनी ना होती या उसमें कोई डैमेज हो जाता तो क्या ये 125 वाला ये हाइड्रोक्सिल लगता? क्या नहीं लगता। तो ये विटामिन डी भले घूम रहा हो, क्या एक्टिव होता? तो ये काम कहीं नहीं होता, तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी का ये काम होता है कि तो तुम बाहर डाइट से जो कैल्शियम लेते हो वो तुम्हारे इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालने का काम करती है। कौन? विटामिन डी। इसका मकसद यह है कि विटामिन डी नहीं है तो तुम कैल्शियम कितना भी मुंह से खा लो, कितना भी मिल्क पी लो, तुम्हारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब, इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो स्टूल से पास हो जाएगा। तो तुम्हारे पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी? कैल्शियम की लेवल। तो जिस भी बंदे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसमें कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होती है। इसलिए आपने देखा होगा ना, विटामिन डी की, कैल्शियम की जितनी भी टैबलेट्स तुम लेते हो वो विटामिन डी के साथ आती हैं उनमें, क्योंकि विटामिन डी का काम ये होता है कि जो कैल्शियम तुम ले रहे हो उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, और इसके लिए तुम्हें विटामिन डी चाहिए। और इसका भी बड़ा रोल किसका है? किडनी का है। तो किडनी इज नॉट जस्ट फॉर यूरिन फॉर्मेशन, द किडनी हैज गॉट 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आल्सो, लाइक विटामिन डी अभी देखा आपने, लाइक ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, लाइक इरिथ्रोपोइटिन। और इसके अलावा अगर कहीं आपको हाइपोग्लाइसीमिया है ना, अगर आपने खाना लंबे ड्यूरेशन तक नहीं खाया है तो पहले तो ग्लूकोज आपको दे देगा ग्लाइकोजन ब्रेक करके लिवर, ज़्यादातर तो वो ही देता है। लेकिन अगर हद इससे भी बढ़ गई और फास्टिंग लंबी हो गई ना अगर आपकी, तो किडनी भी कुछ अमाउंट में ग्लूकोज बना सकती है। यानी किडनी को भी समझ लो ये छोटा लिवर है एक तरह से, किडनी भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज बना सकती है। तो किडनी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज बना सकते हैं ताकि थोड़ी सी ज़िंदगी और आपकी बढ़ाई जा सके, क्योंकि इन दी एंड आपको ज़ाहिर है ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? सो वी हैव गॉट द किडनी फंक्शंस, ये भी यहाँ पर आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद दी यूरिन फंक्शंस। अब आपने देख लिया होगा कि एक तो किडनी का ये फिजियोलॉजी, फिर उसकी आपने एनाटॉमी देखी, फिर यूरेटर देखा, आगे से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर देख ली है। यूरिन फॉर्मेशन देखी, उसके फंक्शंस वगैरह, ये सारा अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनको अच्छे तरीके से कर लो। हमारी जो थर्सडे को क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि ये जितना भी तुमने पढ़ा है, पेशेंट कौन सी डिजीज़ के साथ आता है, खास चीज़ें। ऐसे नहीं कि हम एकदम से मेडिसिन जहाँ पर आपको बताएंगे, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे किडनी इन्फेक्शन, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे एक होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये हैं क्या दरअसल? क्योंकि अब आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अंदाज़ा हो गया है। जैसे रीनल फेलियर, ऐसे सुनते हैं ना, ऐसे मुंह से सुनते हैं ना। क्रिएटिनिन लेवल देखी हमने क्या है, यूरिन की जो कंपोजिशन है होती क्या है, डीआर कैसे पढ़ेंगे, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। असल चीज़ है कि नॉर्मल तुम्हें आता हो, नॉर्मल आ गया तो एबनॉर्मल में कोई मसला नहीं है। नॉर्मल लेगा 90% ऑफ योर टोटल टाइम। एक बिगिनर के लिए 90% टाइम होता है नॉर्मल को समझना। एबनॉर्मल तो लॉलीपॉप है, कुछ नहीं। अब ये बोलूँ मैं कि प्रोटीन लीक हो रहा है और 4 ग्राम आ रहा है 24 आवर में, एकदम से दिमाग जाएगा ना ग्लोमेरुलस की तरफ। वो ग्लोमेरुलस पढ़ाई नहीं हुआ होगा तो कैसे जाएगा तुम्हारा उस तरफ? और फिर ये होगा तो मसला पीछे क्या होगा, ये आप डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो ये। लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले बेसिक्स पढ़ें। देखो ना, एक मिसाल मैं आपको दे दूँ। एक जब घर बनता है ना, कोई बिल्डिंग बनती है, कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं उसकी फाउंडेशन डालने के लिए, बुनियाद डालने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं? डीपीसी। डीपीसी तो खैर कुछ भी नहीं होती, डीपीसी इज़ अ पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। लेकिन आप समझ सकते हैं जब कोई प्लाजा बनता है तो उसको 20-20 फीट नीचे खोदते हैं, और आप जब उनको एस्टीमेट देखेंगे ना, कोई 10-10, 15-15 करोड़ रुपए उस पर खर्चा आ जाता है। ये आर्किटेक्ट कोई बेवकूफ़ है, वो कोई जिस मालिक का बना रहा है उसका दुश्मन है, 20 करोड़ रुपए उस पर खर्चा कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और फिर ये सरिये बाहर निकले हुए होते हैं। नज़र वो आएगा जो अब निकलेगा। तो वो 20 करोड़ रुपए तो मेरे गए, क्या गए? या ये बिल्डिंग उसी 20 करोड़ पे खड़ी होगी, वो तो नज़र ही नहीं आता, वो नज़र नहीं आता। लेकिन वो फाउंडेशन है कि ऊपर से जो तुमने बिल्डिंग खड़ी की है, इसमें अगर तुमने थोड़ी बहुत गड़बड़ भी की तो ये ठीक हो जाएगी बाद में।
लेकिन वो जो फाउंडेशन में गड़बड़ हुई फिर ठीक होगी। तो ये जो इस वक्त तुम्हारा चल रहा है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और ये है फाउंडेशन के 2 साल, ये है वो बुनियाद जो अभी नज़र नहीं आएगी। और इधर तुम लोगों ने अगर कोई गड़बड़ी की और यहाँ तुम लोगों ने अपनी आंखें खुली न रखी और कहीं फाउंडेशन में तुम लोगों ने कहीं अपने आप के साथ कोई बेईमानी की, तो इसका नतीजा जो है वो आगे की बिल्डिंग पे पड़ेगा। बाद में तुम थोड़ी बहुत आदतें अपनी ख़राब कर लेना, इस वक्त न करना, क्योंकि ये जो टाइम है ना फाउंडेशन का, ये दोबारा इसको रिपेयर नहीं कर सकोगे। ऐसा होगा कि 4 साल बाद तुम कहो नहीं यार वो फर्स्ट ईयर में मैंने अच्छे नहीं पढ़े थे, दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ लूँ, कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे। फाइनल ईयर वाला दोबारा पढ़ जाओगे, थर्ड ईयर वाली चीज़ें दोबारा पढ़ लोगे। अगर तुमने चलो बिल्डिंग खड़ी कर ली, टाइल्स अच्छी नहीं डाली, तो कहो नहीं मैं टाइल्स अभी उतार के नहीं डाल दूँ, डाल सकते हो। लेकिन तुम्हें कहे यार नीचे मैंने 10 सरिये की जगह पर मैंने 8 डाले थे, अब तुम 2 और डाल सकते हो क्या? तो वो फाउंडेशन जो गई सो गई। तो इसका मकसद है कि ये जो शुरू के 2 साल है ना, इसमें अपनी आंखें खुली रखो। जितनी फर्म फाउंडेशन होगी उतने आगे जाओगे। 4 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो और कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये होगा ना कि यार मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, मैं 2 मंजिलें और भी लगा देता हूँ। लेकिन अगर फाउंडेशन में तुम फिल्टर करोगे, तो इसलिए मैं हमेशा अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि इस टाइम पर, क्योंकि तुम लोग नए हो ना, बच्चे हो, नए हो, ज़ाहिर है तुम्हें पता नहीं है कि इस फाउंडेशन की क्या अहमियत है। ये आर्किटेक्ट को अंधे नहीं होते कि 20-20 करोड़ रुपए प्लाजा के ज़मीनों में डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते, नज़र भी नहीं आता, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग इस पे डिपेंड करेगी। तो ये जो इस वक्त तुम चल रहे हो ना, ये तुम्हारी फाउंडेशन पड़ रही है। इस टाइम पर बाद में सोए रहना, इस वक्त जागते रहना कि फाउंडेशन तुम्हारी मजबूत हो, ताकि आगे के साल तुम्हारे अच्छे हो। ठीक है, तो ये हम अभी मैं इसका अपलोड करके तुम्हें भेज दूंगा। इसको अच्छे तरीके से, अभी तक जितने भी 3 क्लासेज हैं, दोबारा अच्छे तरीके से फास्ट करके ये वो करके देख लो, ताकि जब मैं डिजीज़ कराऊँ आपको थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को यूरिनरी सिस्टम की आखिरी क्लास होगी, और आपकी उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा वहाँ नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, उस पर 6 हफ्ते दिए इन लोगों ने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम होगा। तो वो उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। दिस वाज योर क्लास।